students. In the last video, we learnt about the conversation between Frank and Taplow. They were discussing about Mr. Croker Harris. We know Taplow has been called by Mr. Croker Harris because he was absent on the last day, and for compensating that work, Mr. Croker Harris gave him instructions to complete that day work. That's why he was there, and he met Frank, his teacher, there. Now their conversation continues. Frank said to Taplow, "Look, what time did Mr. Croker Harris tell you to be here?" He asked him, "What was the time given by Mr. Croker Harris that you must report in the school?" Taplow replied, 6:30, sir. Frank, well, he is 10 minutes late. Why don't you cut? You should still play goal before lockup. Means Frank told him that his teacher, Mr. Croker Harris, was 10 minutes late. And so he is late, that's why he can cut, he can run away from the school and he can play goal before the goal ground has been low. Means यहाँ पे फ्रैंक उससे टाइमिंग्स पूछता है, मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्या टाइमिंग्स दी हैं आपको स्कूल में आने के लिए? तो टेप्लो बताता है 6:30, तो कहता है ऑलरेडी जो टीचर है वो 10 मिनट्स लेट है और आप यहाँ जाने से पहले यहाँ से जा सकते हो और आपके पास अभी एनफ टाइम है कि आप जाके यहाँ से गोल्फ गेम एंजॉय कर सकते हो. टेप्लो रियली शॉक्ड, oh no, I couldn't cut the croak, Mr. Croker Harris. I shouldn't think it is ever been done in the whole time he has been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. Now Taplow replied that he couldn't dare to run away from Mr. Croker Harris because he has ordered to be report there. That's why he had to be there. And if he would try to run away from there, then only God knows what could happen with him. And it could be happen that Mr. Croker Harris would follow Taplow at home and anything can be happen with him. Means Taplow कहता कि भी यहाँ से भाग जाना, मिस्टर क्रोकर हैरिस के ऑर्डर को फॉलो ना करना, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भगवान ही जानता उसके साथ क्या होगा. और ऐसा भी हो सकता है मिस्टर क्रोकर हैरिस उसका घर तक पीछा करे और पीछा करने के बाद कुछ भी हो सकता है. Frank, I must admit, I envy him the effect he seems to have on you boys in the phone. Mr. Frank admitted that he always used to feel jealous from Mr. Croker Harris because Mr. Croker Harris had a good impression on the students and everybody used to follow all the rule and regulation of the school. They always obey the teacher. तो इसीलिए वो उसको कहता है कि मैं मानता हूँ, मैं क्रोकर हैरिस से इस बात में थोड़ा सा जेलस फील करता हूँ क्योंकि बच्चे उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, उन्हीं का कहना मानते हैं. You all seem scared to death of him. आप लोगों को इतना डर लगता है जैसे किसी को मौत का डर लगता है. मीन्स आप सोच भी नहीं सकते कि भी आप उनके जो ऑर्डर है उनको ओबे ना करें. What does he do? Beat you all or something? Means if you disobey him, then what he used to do with them? वो क्या करते हैं, पिटाई करते हैं या कुछ और? Taplow, God Lord, no. हे भगवान नहीं. He is not a sadist. वो sadist नहीं है. Like one or two of the others, like one of the two teachers who are here, he is not in same manner. मतलब जैसे कि दूसरे टीचर्स एक या दो हैं, ऐसा कभी भी मिस्टर क्रोकर हैरिस नहीं करते. He is not a sadist. Sadist means a person who feels happiness always
while troubling others means जो दूसरों को दुख देकर खुशी मनाता उसको सैडिस्ट कहते हैं. Frank, I beg your pardon. Okay, sorry. Taplo, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. Taplo replied, the sadist is a person who always gets enjoy out of troubling others. Means जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद अनुभव करता है वही sadist है. Frank, indeed. Okay, ठीक है. But I think you went on to say that some other masters. लेकिन I think you were telling about the other teachers. Who are these? Taplo, well, of course they are, sir. Yes, of course they are sadists. I wouldn't mention names. मैं उनके नाम नहीं लूँगा. But you know them as well as I do. But आप भी उन teachers के बारे में जानते हैं जैसे मैं जानता हूँ. Of course, I must know most masters think we boys don't understand anything. But sir, you are different. Of course, that most of the teachers used to think that the students never think and never understand the teachers. But you are always different from other teachers. मतलब वो कहता है कि भी टीचर्स हमारे ये सोचते हैं बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, वो कोई चीज नहीं समझते. बट सर आप सबसे डिफरेंट हो. यू आर यंग वेल, आप अच्छे हो, नौजवान हो. कंपैरेटिवली एनी वे यू आर साइंस. और सबसे बड़ी बात यू आर ए साइंस टीचर, आप एक साइंस टीचर भी हो. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज. आपको पता होना चाहिए सैडिज्म क्या है. यू नो द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. फ्रैंक, गॉड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू. अब हमारे स्कूल वालों को क्या होने जा रहा है. व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद आवर स्कूल. टेप्लो, anyway, the Croc is not a sadist. My teacher Crocker Harris is not a sadist. That's what I am saying. और यही मैं आपको कह रहा हूँ. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. वो इतने भी ज्यादा डरावने नहीं हैं जैसे कि वो दिखाई देते हैं. कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स में फीलिंग्स भी बहुत है. He always used to take care of the students. हमेशा बच्चों को ध्यान में रखते हैं. But he has not. He is all severed up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It is funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. वो क्या कहता है? Severed up क्या होता है? Reduced, मतलब जो सिकुड़ गया है. Means जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो एक ऐसे नट की तरह है, जैसे अखरोट होता है ना, ऊपर से तो बहुत ज्यादा सख्त होता है लेकिन अंदर से एक छोटी सी गिरी निकलती है. और कहता है कि भी हमें ऐसा लगता है जैसे उनको इस बात से डिसलाइक करते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, या ये उनके लिए बड़ी अजीब बात है. लेकिन मैं दूसरे टीचर्स को भी जानता हूँ जो ये नहीं चाहते कि बच्चे उनको पसंद ना करें. मीन्स everyone wants that every child like that particular teacher, but we think that Crocker Harris never thinks so that students are supposed to like him. Frank said to Taplo, and I don't know anybody who doesn't use that for his own purpose. But Frank कहता मैं किसी ऐसी बॉय को नहीं जानता जो इस बात को अपने फायदे के लिए प्रयोग करे. Taplo, well, it's natural, sir, but not with the Crocker Harris. But Crocker Harris ऐसा नहीं करते. He never used the students' favor for his selfish purpose. Frank, Mr. Crocker Harris. Oh, yes, Taplo said, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather. मीन्स सबसे जो स्ट्रेंजर्स थिंग है वो क्या है, इन सब चीजों के बावजूद भी आई लाइक माई टीचर. मुझे अपने टीचर बहुत अच्छे लगते हैं. आई कांट हेल्प इट, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है. एंड समथिंग आई थिंक, और मैं भी कई बार सोचता हूँ, he sees it, वो इस बात को समझते हैं. and that seems to civil him even more, और शायद वो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते. सिविल का मतलब यहाँ पे
सिकुड़ना नहीं है, मतलब ये एक सिंबॉलिक वर्ड है, मीन्स टू बिहेव वेरी स्ट्रिक्ट। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सेजरेटिंग। मुझे लग रहा है आप, एक्सेजरेट क्या होता है? ओवर स्ट्रेचिंग, मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, आप ओवर कर रहे हैं। टेप्लो, नो सर, आई एम नॉट, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड आउट ऑफ हिज क्लासिकल जोक, एक बार ऐसे ही क्लास में उन्होंने एक जोक बोला, क्लासिकल जोक जिसको कहेंगे, मजाक किया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। निसंदेह कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को वो जोक समझ ही नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी नहीं समझ में आया। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, लेकिन मुझे पता था शायद सर के कहने का मतलब कुछ फनी हो सकता है, कुछ मजाकिया चीज हो सकती है। सो आई लाफ, इसलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, जैसे कॉमन लोगों में पोलाइटनेस होती है। एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, और मुझे लगा कि भी अगर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है तो उन्होंने एक जोक बोला है हमें हंसाने के लिए, तो हमें हंसना चाहिए, इसीलिए मैंने उस जोक के लिए हंसा मैं। बट सपोज आई मेक यू लाफ सर, लेकिन अब मुझे याद नहीं है, अदरवाइज आई कैन मेक यू लाफ, मैं आपको भी हंसा सकता। टेप्लो, इन ए वेरी जेंटल वॉइस, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक। तो टीचर ने टेप्लो को कहा कि तुम मेरे एक छोटे से जोक पर हंसे। आई नोटिस, मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form didn't. Confess means admit. मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इस बात से खुशी है कि भी आपको लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन वर्ड्स का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इसीलिए आपने दूसरों के कंपैरेटिवली उस जोक पे हंसे। इसका मतलब आपको वो समझ में आ गया है जो बाकी बच्चों को नहीं आया। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो शायद ये अच्छा रहेगा अगर आप जो मैंने कहा है वो सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, ताकि वो भी तुम्हारी खुशी को शेयर कर सके। मीन्स एवरीबॉडी कैन लाफ। The door upright is first pushed up. अब जो राइट तरफ से जो दरवाजा था वो एकदम पुश करने से, धक्का लगाने से खुलता है। And Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, 30 years old है और बहुत ज्यादा दुबली पतली लेडी है। Rather more smartly dressed than the general run of school master's wife. जैसे कि जनरली स्कूल मास्टर की वाइफ्स होती हैं, वो उनसे लगभग थोड़ी सी डिफरेंट। She is wearing a cape and carries a shopping basket. अभी भी उन्होंने एक केप पहना हुआ है, मीन्स जो बगैर बाजू वाला कोट है वो पहना हुआ है, और एक बास्केट, शॉपिंग की बास्केट अपने हाथ में उठाए हुए है। She closes the door, दरवाजा बंद करती है, and then stand by the screen watching टेप्लो, और वहीं पे जो कर्टेन लगा हुआ था उसके पास खड़े होकर टेप्लो और फ्रैंक को देखती है। It is a few seconds before they notice her. अभी कुछ एक सेकंड से हुए हैं जब उन्होंने नोटिस किया that someone has entered, and that lady was Mrs. Crocker Harris. Frank, come along. आगे आओ टेप्लो। More slowly above the desk की ओर आओ, आगे की ओर बढ़ते हैं। Don't be so selfish as to keep a good joke to yourself. तुम इतने सेल्फिश मत बनो कि भी तुम्हें उस जोक पे हंसी आई तो आप मेरे साथ भी वो जोक शेयर कर सकते हो ताकि मैं भी हंसूं। टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। फ्रैंक जल्दी से घूमता है और मिली को देखकर उसे काफी रिलीफ महसूस करता है। फ्रैंक, oh hello, Millie, without expressing hello sir. She comes down to the sideboard, अब वो साइडबोर्ड के पास आ जाती है, and puts her basket on it, और इसके ऊपर अपनी बास्केट रख देती है। टेप्लो, moving up to left of Frank, फ्रैंक से लेफ्ट साइड की ओर मूव करता है। Whispering frantically, घबराहट से फुसफुसाता है।
डू यू थिंक शी हर्ड? क्या आपने ऐसा लगा कि भी उसने हमारी सारी बातों को सुन लिया हो? फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टेबली अपना सिर हिलाते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर केप, वो अपना कोट उतारती है, एंड हैंग्स इट ऑन द होल स्टैंड, और होल के जो स्टैंड रखा हुआ था उस स्टैंड पे उसको लटका देती है। आई थिंक शी डिड, मेरे विचार से उसने हमें सुन लिया होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वो यहाँ पे काफी देर से खड़ी थी। टेप्लो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिमूव, अगर उन्होंने बात को सुन लिया होगा और उन्हें बता दिया होगा तो जो मेरे रिमूवल है, मीन्स जो राजा रिजल्ट देने वाले थे उसमें से ही, तो वो मुझे कभी भी पास नहीं करेंगे। रिमूव करना मीन्स पास करना। फ्रैंक नॉनसेंस। Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. अब मिली कहती है कि भी बस साइड वाली बोर्ड से टोस जो बास्केट उठाती है, then turns to the mat टेबल की ओर जाती है और उसके ऊपर उसको रखती है। Millie, waiting for my husband. Millie said to Tableau, you are waiting for my husband. Tableau, oh yes. Millie, he is at the bursar and might be there quite a time. वो यहाँ से बरसर गए हैं और अच्छा समय बीतने के बाद ही वो आएंगे। If I were you, I would go. अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद अब का यहाँ से चली गई होती। Tableau, doubtfully, he said most particularly I was to come. उन्होंने मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली विशेष तौर पे कहा था कि मुझे यहाँ आना है। Millie, well, why don't you run away from a quarter of an hour and come back? तो तुम क्यों नहीं 15 मिनट के लिए यहाँ से चले जाते और फिर वापस आ जाना। Now she unpacks some things from the basket, से कुछ चीजों का जो है अनपैक करती है, उनको खोल देती है। Tableau, supposing he gets here before me, लेकिन मानो अगर वो मेरे आने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं, then क्या होगा। मिलिंग स्माइलिंग करती हुई कहती हैं, आई विल टेक द ब्लेम, मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। सी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट में एक प्रेस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर की भेजी हुई एक लिस्ट होती है, मेडिसिन लिस्ट उसको कहते हैं, वो उसने उसको दी। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू ए जॉब फॉर मी, अब मैं आपको बताऊंगी मेरे लिए क्या कर सकते हो। टेक दिस परसेप्शंस, इस लिस्ट को ले जाओ टू द केमिस्ट के पास एंड मे गेट इट मेड अप, और इसको तैयार करवा लो। टेप्लो, यस ऑलराइट, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस। नाउ ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, अब वो दरवाजे से वहां से निकल जाता है। मीन्स जो मिली क्रॉकर हैरिस है, शी इज द वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस। शी इज वेरी थिन लेडी एंड शी इज इन हर लेट 13. She is rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. Both Frank and Tableau, they feel her presence. Tableau feels uneasy, and he feels that perhaps she heard him talking ill of Mr. Harris. She sends Tableau to the chemist. She agrees to take the blame on her in case Mr. Crocker Harris comes in Tableau's absence. Now we have read this chapter and we know that two teachers are described here. Both are having contrasting characters. Mr. Crocker Harris used to be a very strict teacher, and while Frank, who is not known to the other teachers, like the other teachers, Mr. Crocker Harris was a very disciplined teacher and he know all the rules and regulations. He always asks the students to follow the rules and students can't dare to disobey his orders. So in this regard, we think that Mr. Crocker Harris is very different from other teachers, which we normally think about the teachers.